Okay, we are inside the Java Servlet programs. So Java Servlet का basics idea हम लोग दे चुके थे. Now we are moving towards the normal programs. हो गया था. कल हम लोग एक छोटा सा ही 10 मिनट का क्लास हुआ था जिसमें हम लोग समझाए थे. प्लीज इसको एक बार रिकैप करो. ये हाउ टू मेक माने व्हेयर एक्चुअली जावा सर्वलेट्स लाइफ साइकिल लाइज, इसके बारे में थोड़ा आइडिया मैंने दिया था. जावा सर्वलेट एंड जावा एप्लीकेशन का डिफरेंस मैंने बताया था. एंड इसमें विजिट्स, कैसे हम विजिट्स को इंक्लूड करेंगे, इसमें एक्चुअली क्यों विजिट को इंक्लूड करने के बाद हम लोग को ये पता चला कि दिस लाइन एक्चुअली कि एंट्री पॉइंट फॉर सर्वलेट कोड इज वाया कॉल और मेथड डूगेट. So डूगेट मेथड इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द सर्वलेट. सो दैट एक्चुअली इसको प्रूव करने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम किए थे. दैट इज विजिट इक्वल्स टू 0 एंड इनसाइड द विजिट, इनसाइड द डू पोस्ट, just you pointed, just you incremented this visit plus plus. So visit plus plus whenever you use at the time it will, so that means first go do post जैसे ही होगा ये visit plus plus होगा, do post जैसे ही कॉल होगा visit plus plus increment होगा. So that's the way to count your visit number, how many times your page is actually how many times your page is actually accessing into the network. So that actually takes from this particular point. So now we are अब हम लोग जो समझने वाले हैं वो अच्छा से समझना कि how to get request and response. So that means whenever JSP or Java Servlet, both the pages, for both the pages, please try to understand, for both the pages, this actually common for both the pages, this HTTP request and response. Because एक चीज तुम लोगों को शुरू दिन से ही बोलते आ रहा हूं, that is Servlet, sorry, JSP does not run independently. JSP does not run independently. That means JSP first convert into the Servlet and then it will run. तो JSP पेज इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे. JSP पेज never runs directly. JSP पेज first convert into the sublet page and then sublet page will run. So definitely request response there also. That means sublet में अगर request response होगा, so there also the request and response part. And why so? Because response and request is written as Java language. So ये request and response जो भी सर्वर में request and response हो रहा है, that is written in Java. So अब ये चीज हैंडल करने के लिए हमको कहीं ना कहीं सबलेट पेज में कन्वर्ट करना ही होगा. So that's the thing तुम्हें समझना है. तो आप रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स में होता क्या है, ये रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पैकेज में होता क्या है. रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पेज में जस्ट नथिंग, इट इज इंफॉर्मेशन अबाउट सम प्री प्रोसेसर्स. That means ये रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स को करने के लिए या जो भी पेज जनरेट होगा उसको पेज जनरेट करने के लिए मुझे कुछ इंफॉर्मेशन, प्री रिक्विजिट इंफॉर्मेशन का जरूरत पड़ता है. प्री रिक्विजिट इंफॉर्मेशन का जरूरत पड़ता है. दैट प्री रिक्विजिट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय दिस HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हेडर्स. Headers is a just information, just headers are the information, but each and every header is particularly for each one single task. That means कोई HTML जो पेज तुम जनरेट करोगे डायनामिकली, उसमें कुछ इंफॉर्मेशंस तुम्हें जरूरत पड़ेगा. वो इंफॉर्मेशंस कहाँ स्टोर रहता है? दिस हेडर्स में. रिक्वेस्ट हेडर है पर्टिकुलर कुछ इंफॉर्मेशंस, बट एक स्पेसिफिक टास्क के लिए होगा. ईच एंड एवरी, सो रिक्वेस्ट हेडर इज ए पैकेज. रिक्वेस्ट हेडर इज ए रिक्वेस्ट इज ए पैकेज and header request is a package. Inside the request some small headers are there. That headers are basically for a particular task. That is a simple unit set of some informations for a single task. Each header will perform a single task. That is the simple thing you have to understand. Now what is the mainly information? See, following the important header information which comes from browser side to you, browser side to server, actually you means server, would use very frequently in web programming. जब जो अब हम लोग बताने वाले हैं वो that is not all, कि उसके अलावा हेडर नहीं है, ऐसा नहीं है. जो हम आगे बताने वाले हैं अभी वो सिर्फ मेन हेडर्स के बारे में बताया गया है. ये एग्जाम में आता है कि एक डिस्क्राइब सम मेन हेडर्स ऑफ रिक्वेस्ट हेडर्स. सो ये बट बार बार मैं बोल रहा हूं, दिस इज नॉट कंप्लीट लिस्ट. इसके आगे भी बहुत सारे और है.
लेकिन जो मोस्टली हम लोग का यूज होता है वो इंफॉर्मेशन मैं अभी दे रहा हूं। कैसे, ये क्या इंफॉर्मेशन होगा? सी, accept char set, accept encoding, that three all kinds of operations is similar kinds of operation, that is accept. So that means कौन सा चीज accept करेगा, कौन सा पेज, जो पेज होगा कौन कौन सा चीज एक्सेप्ट करेगा, दैट इज फर्स्ट योर टारगेट। तो अब क्या क्या एक्सेप्ट करेगा? एक्सेप्ट हेडर, बेसिकली एक्सेप्ट हेडर टेल्स कि हाँ कौन सा फॉर्मेट में दिस हेडर स्पेसिफाइड द एक्सटेंशंस, मतलब ब्राउजर कौन कौन सा हेडर, कौन कौन सा फाइल सपोर्ट करेगा, दैट कम्स इनसाइड द एक्सेप्ट पार्ट। कौन कौन सा टाइप का हेडर सपोर्ट करेगा, कौन कौन सा टाइप का पेज एक्सेप्ट करेगा, दैट्स सिंपल। कभी कभी एग्जाम, ये कभी कभी देखना वेब पेज में आता है कि अपलोड योर फाइल, तुम फाइल अपलोड किए, वो बोलेगा कि हाँ ये जेपीजी में ही होना चाहिए, इतना केबी के बीच में होना चाहिए। सो दैट इज द सिंपल specifies the only type. This accept actually specifies the type. हाँ इसके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन, इसके पास इंफॉर्मेशन रहेगा कि किस किस टाइप का फाइल को तुम एक्सेप्ट करोगे। जेपीजी हो सकता है, पीडीएफ हो सकता है, कुछ भी, but that must be specified in this particular header. This particular header actually, so multiple internet mail extensions, कुछ भी टाइप, कोई भी टाइप का फाइल तुम यहाँ पे अटैच कर सकते हो या जो भी चीज कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। दैट फाइल्स, what are the file types, extensions, it will accept the extensions कि कौन कौन सा टाइप का फाइल ये एक्सेप्ट करेगा। दैट इंफॉर्मेशन is comes under this particular accept header. Accept char set, that means कौन कौन किस कैरेक्टर में तुम डिस्प्ले करना चाहते हो, कौन सा कैरेक्टर टाइप में तुम डिस्प्ले करना चाहते हो। दिस इज द एग्जांपल ISO 8859 and 1 so -1। so this फॉर्मेट, दिस इज ए डेटा फॉर्मेट जो जनरली हम लोग का कैरेक्टर सेट यूज होता है, जो जनरली हम लोग का जो भी कैरेक्टर हम लोग जैसे कि लिखते हैं कि भास्कर 10 प्रिंट किए कोई वेब पेज में, सो वो डायरेक्टली कोई ना कोई फॉन्ट ले लेता है, बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई फॉन्ट ले लेता है। सो दैट इज द कैरेक्टर सेट, कैरेक्टर इंफॉर्मेशन। यहाँ पे ब्राउजर कौन सा ब्राउजर कौन कैरेक्टर सेट एक्सेप्ट करेगा, सो दैट इज दैट इंफॉर्मेशन कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर डेटा हेडर। Accept encoding, this header specifies the type of encoding that browser know how to handle. Please be very careful. How specific encoding techniques means, मैं इससे पहले समझा चुका हूं, एक बार एक छोटा सा क्लास लिए थे क्रिप्टोग्राफी का, छोटा सा मैं वेबिनार मैंने लिया था तुम लोगों का कि क्रिप्टोग्राफी मींस जब मैसेज पास होगा या जब मैसेज कम्युनिकेशन के थ्रू जाएगा ना, डायरेक्टली जो मैसेज है वो मैसेज डायरेक्टली डाटा के तौर पे नहीं जाता है, वहां पे क्या होगा, यू हैव टू एनकोडिंग इट, यू हैव टू एनकोडिंग सम अनदर फॉर्मेट। हेलो के तरह नहीं जाता है, हेलो कोई दूसरा लैंग्वेज, दूसरा कैरेक्टर बन के जाता है, और यहाँ पे रिसीवर एंड में भी फिर वो बदल के डिक्रिप्ट होके हेलो बन जाता है। सो दैट एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक, व्हिच टाइप ऑफ एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक यू आर यूजिंग, that thing comes under this accept encoding format, accept encoding data header. Now accept language, मतलब कौन सा लैंग्वेज में तुम प्रोड्यूस करना चाहते हो। कोई वेबसाइट देखना चाइनीज लैंग्वेज में आता है, कोई वेबसाइट या गूगल में भी तुम बंगाली चूज कर सकते हो, कुछ हिंदी चूज कर सकते हो। गूगल को भी हिंदी, बंगाली, इंग्लिश कुछ भी यहाँ पे ऑप्शन देता है नीचे। So that language actually specifies the client's preferred language in case sublet can produce result more than one language. अगर सबलेट ऐसा बना हुआ है तुम्हारा कि मोर देन वन लैंग्वेज ये एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट लैंग्वेज इज द हेडर, जिस हेडर के अंदर ये इंफॉर्मेशन रहता है कि कौन कौन सा लैंग्वेज प्रेफरेबल है, कौन कौन सा लैंग्वेज तुम्हारा प्रेफरेबल है, वो हेडर, वो पर्टिकुलर डेटा हेडर एक्चुअली यहाँ पे स्टोर रहेगा। Authorization, this header used to client identify themselves when accessing password protected web browser. जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कोई पासवर्ड प्रोटेक्टेड वेब ब्राउजर तुम यूज कर रहे हो,
सो ऑथोराइजेशन इज ए हेडर जो कि जनरली ऑथोराइज करता है कि हाँ दिस इज द रियल यूजर और फेक यूजर। Password protected web pages, password protected web pages. Now see, Gmail, तुम Gmail खोलने के बाद डेटा ये देते हो और पासवर्ड देते हो, वो कहीं ना कहीं जाके मैच होता है, डेटाबेस जेडीबीसी ओडीबीसी में जाके मैच होता है। अब वो मैच होने के बाद एक वेब पेज खुल के आया, सो दैट इज ए पासवर्ड प्रोटेक्टेड वेब पेजेस। जो तुम्हारा जीमेल खुल के आ रहा है दैट इज ए पासवर्ड प्रोटेक्टेड वेब पेजेस, मेरा जीमेल खुल के आ रहा है दैट इज ए पासवर्ड प्रोटेक्टेड वेब पेजेस। सो पासवर्ड प्रोटेक्टेड वेब पेजेस में एक हेडर रहता है दैट इज ऑथराइजेशन। दिस हेडर एक्चुअली आइडेंटिफाइज कि हाँ ये एक्चुअली ऑथराइजेशन करने के लिए यूज होगा। सो दैट पैकेज इस हेडर का काम है कि हाँ पासवर्ड सही है कि नहीं चेक करना। सो दिस इज ए स्पेशल टास्क ऑफ दिस ऑथराइजेशन हेडर। Now connection length and cookie. Connection basically simple, it will tell कि हाँ persistent मतलब connection is constant रहेगा या कनेक्शन कभी कुछ देर बाद अगर बैठ जाओ तो देखना जीमेल कुछ देर खोल के छोड़ दो तो देखना वो फिर से रिफ्रेश होने लगता है। अगर जीमेल को छोड़ के कोई दूसरा टैब खोलो, सिंपल यू कैन सी योरसेल्फ आल्सो, तुम लोग देख सकते हो जीमेल खोल दिए तुम, पहले जीमेल खुला हुआ है, उसके बाद फिर तुम जैसे ही एक नया टैब खोलो एंड उस टैब में तुम अपना काम करते रहो, कुछ भी तुम यूज करो, बहुत देर तक वो जीमेल तुम नहीं खोले, जीमेल टैब तुम ओपन नहीं की, जीमेल टैब ऐसे ही क्लोज होके बैठा हुआ है। फिर उसके बाद तुम जीमेल में जाते हो, देखना फिर से तुम्हारा जीमेल खुलता है रिफ्रेश होके। So this is actually connection. This is actually connections will do. Connection means वो कुछ देर अगर तुम नहीं, ये constant connection वो नहीं देगा constantly, इसके बाद तुम उसके बाद एक कुछ देर बाद वो ब्रेक कर देगा constantly। अगर you are not doing work, persistent connection ये नहीं देगा, that is called persistent connection। कुछ देर बाद वो कनेक्शन को लॉस कर देगा वो, तभी तुम नया फिर से नया जब टैब में वापस जाते हो तो फिर से रिफ्रेश होकर नया पेज खुलता है। दैट मींस कनेक्शन इज अगेन क्रिएटिंग, connection is again coming. So this is called persistent connection. So persistent connection browser में है कि नहीं है, that is the total task of given by this connection, this header connection header. Content length, that means how much, what is the length of size of data, byte में. So this header specifies only to post request and gives the size of post data in bytes. पोस्ट, दिस इज ओनली पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है कंटेंट लेंथ, नॉट गेट में ये कंटेंट लेंथ होता नहीं है। सो कितना डेटा तुम उस ब्राउजर में ला रहे हो, डेटा, ओनली डेटा, नॉट द पैटर्न, नॉट द तुम बोलोगे कि सर ये जो हम बना के डायनामिकली बना रहे हैं HTML पे, वो HTML भी उस डेटा में आएगा। नो, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली द डेटा, कि जो वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हो बाहर से, वो वैल्यूज, डेटा का लेंथ क्या होगा, दैट कंटेंट लेंथ इज गिवन बाय मैक्सिमम, इतना डेटा ये ले सकता है। सो दैट लेंथ इज टेकन बाय दिस कंटेंट लेंथ मेथड। कुकीज को मैं फिर से मैं समझाऊंगा, कुकीज है क्या चीज, थोड़ा सा आइडिया तुम्हारे पास है, बट कुकी एक हेडर है, जो हेडर कुकीज को सपोर्ट करने के लिए यूज होता है। कुकीज में आऊंगा इन डिटेल्स इसके बाद है, कुकीज है क्या, क्यों हम कुकीज यूज करेंगे, सो दैट थिंग एक्चुअली वी विल कम टू द पॉइंट। सो बेसिकली उसके लिए तुम ये समझ के रखो, अभी कुकी एक हेडर है जिस हेडर के अंदर सारे कुकीज इंफॉर्मेशन रहता है, ऑल द रिटर्न कुकीज रिटर्न सर्वर को प्रोवाइड करता है। दिस हेडर एक्चुअली रिटर्न्स ऑल द कुकीज टू सर्वर that previously sent them to the browser। मतलब इससे पहले अगर ब्राउजर खुला था तो वो कुकीज को वो फिर से वहां से प्रोवाइड करता है। सो दैट्स द सिंपल टास्क। कुकीज अब क्या है इन डिटेल्स में बताऊंगा। जैसे कि ये रिक्वेस्ट था, उसी तरह रिस्पॉन्स में भी कुछ हेडर है। दैट मींस फर्स्ट रिक्वेस्ट किया, कुछ इंफॉर्मेशन भेजा उसके पास, ब्राउजर के पास, वो इंफॉर्मेशन ले जाके ब्राउजर क्या किया, उस इंफॉर्मेशन को ले जाके सर्वर में पटक दिया, सर्वर इस सबलेट के पास चला गया, सबलेट या जेएसपी जो भी पेज है उसके पास गया, उसके पास जाने के बाद वो रिक्वेस्ट के हिसाब से उस इंफॉर्मेशन से देख के, वो जो हेडर्स है, इस हेडर्स को देखते हुए इट विल डू द टास्क, इट विल क्रिएट डायनेमिकली द वेब पेजेस
and then it will again give the response. रेस्पॉन्स में क्या देगा, एक वेब पेज बना के देगा. वो रेस्पॉन्स जब भेजेगा उसमें भी वो हेडर ही बना के भेजता है, डायरेक्टली नहीं भेजेगा वो. ये दिस इज ए रेस्पॉन्स इज आल्सो ए पैकेज. रेस्पॉन्स इज आल्सो ए पैकेज, जिस पैकेज के अंदर सम हेडर्स है. अब वो भी एक इंफॉर्मेशन तौर पे भेज रहा है, एंड इट विल क्रिएट सर्वलेट कंटेनर विल क्रिएट द वेब पेजेस डायनामिकली. सो डायनामिकली वो जो सर्वर से आ रहा है उसके पास, सर्वलेट कंटेनर के पास सर्वलेट आ रहा है रेस्पॉन्स, वो रेस्पॉन्स किस वे से आएगा, यूजिंग सम हेडर्स. डेफिनेटली दैट इज आल्सो यूजिंग सम हेडर्स. सो अब ये हेडर्स कैसे आएगा. सो रेस्पॉन्स हेडर्स में क्या क्या चीज रहेगा, सिंपली यू सी. रेस्पॉन्स हेडर में क्या क्या चीज रहेगा, यू सी. नाउ सी, allow is the header. This is the response header. Allow is the header that specifies the request method that server supports. That means server जो गेट मेथड तुम यूज कर रहे हो या पोस्ट मेथड यूज कर रहे हो, दी दोनों का कोई एक मेथड ब्राउजर के पास भेजेगा, क्योंकि ब्राउजर को उस हिसाब से काम करना है ना. ब्राउजर क्या मैंने दिखाया था, गेट मेथड यूज करते हैं तो ब्राउजर वो सारे इंफॉर्मेशन सारे डेटा ऊपर में शो होता है. कहां से कैसे शो होगा, क्यों शो होगा, बिकॉज ये अलाउ के चलते. अलाउ बोल देता है कि हाँ ये गेट मेथड है तो ये गेट मेथड के तरह तुम यूज करो. दिस इज अ रिस्पॉन्स थिंग. ये सर्वर से रिस्पॉन्स मेरे पास आ रहा है कि ये गेट मेथड है भाई, तो वो तुम उसके हिसाब से तुम डिस्प्ले करोगे. सो यूआरएल में ये ब्राउजर उसी हिसाब से डिस्प्ले करता है. सो गेट मेथड और पोस्ट मेथड दैट स्पेसिफाई एक्चुअली दिस अलाउ पैकेज हैव स्पेसिफाइड द गेट मेथड और पोस्ट मेथड. नाउ कैचे कंट्रोल. कैचे कंट्रोल इज ए सिंपल थिंग कि अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स बार बार कोई पेज, कैश का काम क्या है, सिंपल कैश का काम क्या है, कैश का काम इतना ही है कि अगर कोई पेज फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है, उस फ्रीक्वेंट पेजेस को या फ्रीक्वेंट डेटास को तुम अपना एक कैश बना के उसमें सेव करके रख देते हो. मेमोरी में एक कैश बना के उसको सेव करके रख देते हो, ताकि फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है तो हमको मेन मेमोरी में जाने का जरूरत नहीं है, कैश से ही हम उसको एक्सेस कर लेंगे. सो दैट द same thing here also it will happen. If you use frequent pages, that is saved into the cache of a browser का एक कैश बनेगा, वो ब्राउजर कैश में ये सेव करके रख देता है. बट अगेन थ्री टाइप ऑफ पेजेस आर देयर. One is public, private and no cache. Public, private and no cache में क्या डिफरेंस है. See, public means document is cacheable. That means कोई भी अगर पेज तुम कोई पेज भेज रहे हो, that you may store inside your cache. You may store. मैं बार बार सर्वर में जाने का जरूरत नहीं, तुम कैश में स्टोर करके रख दो, मैं वहीं से एक्सेस कर लूंगा. सो अब थोड़ा फास्ट हो जाएगा इससे. और सेकेंड प्राइवेट मीन्स डॉक्यूमेंट इज फॉर सिंगल यूजर एंड कैन only be stored is a private cache, non shared cache. That means simple, ये मर्चेंट वाला पेज है. मतलब जब मान लो तुम सिंगल यूजर के लिए, अगर जैसे कि जीमेल, तुम जीमेल खोल रहे हो, जीमेल तुम्हारा ब्राउजर में खुला हुआ रहता है, बट जब भी तुम ये एक जीमेल दूसरा जीमेल से खोलोगे, मतलब दूसरा जगह खोलोगे, तो वो परमिशन मांगता है. लेकिन दूसरा जगह हर जगह खुला हुआ नहीं है, हर जगह वो पेज खुला हुआ है, सिर्फ तुम्हारा डिवाइस में वो खुला हुआ है, तुम्हारा फोन में वो खुला हुआ है, बट तुम्हारा कैचे में इसका मतलब स्टोर है. Definitely your cache must have this particular thing. So that is private. So public, private, single user के ही में ही ये स्टोर होगा. एंड नो कैसे मीन्स कभी भी कोई कैच नहीं होगा. जैसे कि मर्चेंट पेजेस दैट जो जब तुम मनी ट्रांसफर करते हो, कोई भी मनी ट्रांसफर का पेज है, वो पेज एक के बार में आएगा, कोई कैच वैच कुछ नहीं होना है, बिकॉज इंफॉर्मेशन इज सेंसिटिव. कोई कैच में ये स्टोर नहीं होगा, वो डायरेक्टली वहां पे एक्सेस होगा, उसके बाद क्लोज हो जाएगा. सो दीज आर द थ्री पेजेस you may, that is cacheable or non private, public and no cacheable. So that cache control is specifies this particular header cache control. ये पेज टू पेज डिपेंड करेगा कि क्या रिस्पॉन्स देना है क्या नहीं देना. सो कनेक्शंस here also connections is same as this connection.
दिस कनेक्शन सेम एज दिस कनेक्शन। रिक्वेस्ट में भी कनेक्शन था, परसिस्टेंट होगा या नॉन परसिस्टेंट होगा, यहाँ पे भी सेम, इसमें भी ये इंफॉर्मेशन रहेगा कनेक्शन दैट इज परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट, बोथ द पेज। परसिस्टेंट मींस मैं समझा दिए, so that the same thing connection will do. Now content disposition. Content disposition is this header lets you request that the browser ask the user to save the response to disk or file of a given name. Simple. ये ब्राउजर पूछेगा कि हाँ इसको मैं सेव करके रख दूं, रेस्पॉन्स जो भी आया वो रेस्पॉन्स क्या मैं सेव करके रख दूं कहीं पे, कोई फाइल में या कोई डिस्क में सेव करके रख दूं। सो दीज आर द थिंग कंटेंट डिस्पोजिशन। ये आस्क ब्राउजर को पूछेगा ये चीज। सो दैट द सिंपल थिंग। ये रिस्पॉन्स में ये कंटेंट डिस्पोजिशन इज द वन हेडर, जो हेडर ये पूछता है कि हाँ तुम जो रिस्पॉन्स भेजे हो क्या मैं वो सेव कर सकता हूँ। दैट इज द सिंपल थिंग। अगर यस होगा तो सेव कर लेगा, नहीं होगा तो नहीं सेव करेगा। सो दैट इंफॉर्मेशन गिव्स यू कंटेंट डिस्पोजिशन। सो यस और नो, ये दो चीज होता है। नाउ कंटेंट एनकोडिंग, सो सिंपल अगेन फिर एनकोडिंग, बिकॉज हेडर जब रिस्पॉन्स भेजेगा तो ऑब्वियस बात है कि एनकोडिंग में ही आएगा। सो एनकोडिंग टेक्निक क्या है, दैट द सेम थिंग वो प्रीवियस, यहाँ पे भी कंटेंट लैंग्वेज होगा। दैट मींस कोई भी कौन सा लैंग्वेज में तुम यहाँ पे सपोर्ट करना चाहते हो, कौन सा लैंग्वेज तुम डॉक्यूमेंट में लिखना चाहते हो, डॉक्यूमेंट्स बंगाली में लिखना है, हिंदी में लिखना है, वो डॉक्यूमेंट्स कौन सा लैंग्वेज में लिखना चाहते हो, दैट इंफॉर्मेशन कम्स इनटू द कंटेंट लैंग्वेज पेज, दैट इज रिस्पांस में आएगा। नथिंग ओके? सो दिस आर द सिंपल थिंग व्हाट वी लर्न। कंटेंट लेंथ, बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड कंटेंट लेंथ। यहाँ पे जैसे कि जो डेटा रिस्पॉन्स भेज रहे हो उसका रिस्पॉन्स का कितना लेंथ है, टोटल कंटेंट लेंथ। कंटेंट टाइप, कौन कौन सा फाइल एक्सेस कर रहा है, कौन कौन सा फाइल इसके अंदर है, सारे कंटेंट टाइप कौन कौन, जैसे माइम टाइप मैंने पिछले बार भी हेडर में भी उस हेडर में भी मैं बोला कि ये माइम मींस मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। सो दिस पर्टिकुलर which type, how many types of files you are accessing with this response के साथ कौन कौन सा टाइप आ रहा है। सो ये चीज कंटेंट टाइप इंफॉर्मेशन इस हेडर में रहेगा। एक्सपायर्स, कितना देर बाद तुम्हारा रेस्पॉन्स क्लोज हो जाएगा। कभी कभी देखना सेशन एक्सपायर्स, फिर से ज्वाइन करो, कौन कैसे, ये सारी इंफॉर्मेशन इस एक्सपायर्स में रहता है। लास्ट मॉडिफाइड, दैट मींस कब तुम्हारा ये पेज लास्ट मॉडिफाई हुआ था, दैट इंफॉर्मेशन इज given by last modified. This header indicates when the documents were last changed. That means तुम्हारा जो documents तुम create किए हो वो प्रोग्रामर कब last change किया था। That is actually for the client can they catch the documents and supply date by an if modified scenes request header add later request। तो ये अगर ये क्यों चाहिए, because इसके बाद जो तुम response भेजोगे वो इसके हिसाब से change होगा। मान लो मैं एक रेस्पॉन्स भेजा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। लास्ट मॉडिफाइड मींस सिंपल, इसके पहले कब तुम्हारा ये डेट तुम ये चेंज किए हो, ये कब मॉडिफाई हुआ है, ये पेज जो तुम रिस्पॉन्स ले रहे हो ये पेज कब मॉडिफाई हुआ है। नॉर्मल बनता था, मान लो एक तरह से बनता था, तुम कुछ मॉडिफाई किए अपना सर्वलेट में, कब मॉडिफाई हुआ है ये। जैसे कि होता नहीं है कि तुम्हारा वर्जन चेंज होता है, ये इससे क्या होगा, जो मान लो तुम्हारा गूगल खुला हुआ था, तुम्हारा गूगल का वर्जन चेंज हो गया, सो इसके बाद कैचे में ये इंफॉर्मेशन भेजेगा कि यह मॉडिफाई हुआ था। अब नेक्स्ट बार से वो कैचे क्या करेगा, वो मॉडिफाइड वर्जन को स्टोर करेगा। सो ये इंफॉर्मेशन आना चाहिए तुम्हारे पास। ऐसा नहीं है कि हम एक बार मान लो गूगल का अपीयरेंस ही चेंज कर दिया, वर्जन गूगल का अपीयरेंस चेंज कर दिया, अब तुम जब जीमेल खोल रहे हो या गूगल खोल रहे हो पुराना वाला खुल रहा है, कहां से खुल रहा है, कैच से खुल रहा है, बिकॉज तुम्हारा कैच में वो सेव है। अब ये इंफॉर्मेशन अगर रिस्पॉन्स में आ गया, दैट मींस उसको देख के तुम अब क्रिएट कर सकते हो कि ये नया होगा कि पुराना होगा। अगर पुराना है, पुराना वाला डेट लास्ट मॉडिफाइड इंफॉर्मेशन डेट वहां नहीं था, मैच करो, मैच करके देखो कि हाँ ये मॉडिफाइड वर्जन आ रहा है, तो देन यू ओपन द मॉडिफाइड वर्जन एंड उसको भी कैच में स्टोर करके रख दो। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज नीडेड। एम आई क्लियर? मैं क्लियर कर पाया? लास्ट मॉडिफाइड
Okay, now we are moving towards the session part. Session is very important. Session is very important. One thing you so इसके पहले जो भी हम पढ़े हैं that is total header, request header and response header. So ये चीज एग्जाम में आता है, request and response header इंफॉर्मेशन एग्जाम में आता है. रिक्वेस्ट में कौन कौन सा मेन हेडर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दो. सो ये सारे एग्जाम में आता है. सो प्लीज गो थ्रू इट. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द सेशन. सेशन टिप्स. सेशन क्या करता है? सिंपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड. सेशन बेसिकली वन थिंग यू लर्न. मान लो तुम्हारा तुम गूगल में गूगल खोले या जीमेल खोले. जीमेल खोलने के बाद तुम उसके अंदर बहुत सारे पेज को एक्सेस करते हो. उसके अंदर बहुत सारे पेज. वन थिंग अगेन, मैं उसके अंदर तुम्हारा ज्यादा पेज होता नहीं है तो मैं उसका जो एग्जांपल है वो एग्जांपल को थोड़ा साइड कर रहा हूँ. यू टेक अमेज़न, इट विल बी बेटर फॉर यू. यू टेक अमेज़न. सो अमेज़न में अब देखो, तुम जैसे अमेज़न खोले, अमेज़न खोलने के बाद फर्स्ट एक सर्च पेज खोले. वो सर्च पेज में जाके सारे दे देता है डॉक्यूमेंट्स, सारे चीज तुम्हारे सामने ला देता है कि हाँ ये सामान है मेरे पास. उसके बाद जैसे ही तुम ऐड टू कार्ट क्लिक किए, एक नया पेज जनरेट हुआ. एक नया पेज जनरेट हुआ जिस पेज का काम है कि हाँ वही से तुम्हारा जो कार्ट है, तुम्हारा जो अमेज़न खोले थे वहां से कार्ट में गया. और कार्ट में जाने के बाद फिर तुमको मन किया कार्ट से फिर वापस आके फिर कुछ सर्च करने. वापस तुम फिर आए, कुछ सर्च किए, फिर तुम उसको ऐड टू कार्ट किए. लास्टली कार्ट में ऐड, जैसे कार्ट में क्लिक किए तो कार्ट में एक नया पेज खुल गया है जिसमें ये पेज क्या सेम पेज है? नो. बार बार तुम देखे होगे कि जैसे ही क्लिक करते हो वो दूसरा पेज में चला जाता है. फिर कार्ट से जैसे ही बाय नाउ करते हो तो दूसरा पेज चला जाता है. सो दे आर लिंक्ड पेजेस. एम आई क्लियर? लिंक्ड पेजेस कि इसके बाद ये खुलेगा, इसके बाद ये खुलेगा. अब हाउ टू हैंडल दे, अब कि सेम यूजर से आ रहा है, ये वो लोग कैसे चेक करता है कि ये तुम जो वेब ब्राउजर खोले हो इस वेब ब्राउजर से ही ये हो रहा है. या सिंपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे कि ये बैक किए तो बैक टू फिर प्रीवियस पेज, बैक टू जैसे ही वो सामने वाला मतलब पेज में जैसे ये बैक किए, तुम्हारा जो जिसमें जैसे तुम था उसी टाइम उसी पेज में वापस करता है ये कि दूसरा पेज में वापस कर देता है. जिस पेज में तुम पहले था, कार्ट में चला गया था, फिर जब कार्ट से बैक किए तो उसी पेज में वापस आता है. हाउ दे आर हैंडलिंग इट? ये कैसे उसको पता चला कि हाँ ये इसी ब्राउजर इसी से ये इस पोजीशन में था तो उस पोजीशन में वापस करते हैं? कैसे ये इसको पता चलता है? For that handling the session needed. For that part session is needed. Session basically does clearly understandable. This is I think session basically creates a session ID. जिस ID से जितने बार भी तुम एक्सेस करो वही ID से वो क्लिक होगा और वही देख के ID देख के उसको समझ में आता है कि कौन सा यूजर ये प्रोवाइड कर रहा है, ये कौन सा यूजर यहाँ पे क्लिक किया है. By seeing that ID, by seeing the ID, they are actually handling from where this request come and how to give the response. So for that, this is a thing. So problem. How does the server knows which user generated which HTTP request? That's the simple concept of session. So many interactive websites spread user data entry out over several pages. नहीं, वो एक यहाँ पे एग्जांपल कौन सा दिया है? Add item to cart, enter shopping information, enter billing information. ये सारे अलग अलग पेजेस है बट कनेक्टेड पेजेस है. नाउ पहले तुम कार्ट में एंट्री कर दिए, उसके बाद एंटर शिपिंग इंफॉर्मेशन. शिपिंग इंफॉर्मेशन में जैसे ही गए वो सेम ये से रिक्वेस्ट गया कि अलग दूसरे जगह से रिक्वेस्ट गया, कैसे ये समझेगा? एम आई क्लियर? मैं क्लियर कर पाया तुम लोगों को कि ये मान लो तुम क्लिक किए ऐड कार्ड करने के बाद कार्ड से ही तुम ये एंटर शिपिंग इंफॉर्मेशन में करा, तुम अपना एड्रेस प्रोवाइड करते हो. उसके बाद फिर एंटर बिलिंग एड्रेस, कौन सा बिलिंग एड्रेस होगा, फिर अपना प्रोवाइड किए. ये सारे पेजेस कैसे इंटरकनेक्टेड, हाउ दे आर कनेक्टिंग टू ईच अदर.
कैसे ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, कैसे ये हैंडल कर रहा है कि हाँ ऐड टू कार्ट जाने से पहले ये क्लिक किए तो वही वाला क्लिक किया है, मतलब वही यूजर क्लिक किया है, ये जब ये हो रहा है इसका रिक्वेस्ट कोई दूसरा नहीं ना कर रहा है, हाउ दे आर हैंडलिंग इट फॉर क्रिएटिंग, सो दैट द सिंपल थिंग, ये यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए, यूजर कौन सा है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सेशन, सो दैट इज ए बेसिक आइडिया ऑफ सेशंस. So it will create a session ID for each and every request. See, client 1, client 2. If client 1 is requesting, then it is a response is going by some ID. And see, whenever same client, same ID, it is repeating. Same ID, it is repeating. And using that ID actually gives the response. Please see, this is called session ID, session. And इसका एक time, इसीलिए तुम लोगों कभी कभी देखते हो ये इस सेशन जनरेट जैसे ही हुआ, इसका एक सेशन आईडी जब जनरेट हुआ, बट सेशन आईडी का एक वैलिडिटी पीरियड रहता है, सेशन आईडी का हमेशा एक वैलिडिटी पीरियड रहेगा. सो कुछ देर बाद ये सेशन आईडी खत्म हो जाएगा, इसीलिए बोलता है पूरा कार्ड पूरा खत्म होने तक, तब तक तुम लोग एक सेशन खत्म होने तक ये पूरा कंप्लीट करना है. तो इसका एक टाइम लिमिट रहता है कि ये सेशन जब भी क्रिएट होगा इसका एक टाइम लिमिट होगा. नाउ हाउ मेनी टाइम्स इट इज रिक्वेस्टिंग सेम क्लाइंट से जब भी होगा ये रिस्पॉन्स हमेशा ये आईडी से ही देगा, ये इसको पता चलेगा कि हाँ इसी आईडी से आया है. सो दैट यूजिंग दैट सेशन आईडी इट एक्चुअली गिव्स द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स. बट व्हेनेवर क्लाइंट 2 आर एक्सेसिंग, सी 9168 9168 9168, all the things are 9168. So that's the thing to use the session ID. This is called session. So see, I have already told to you. Same ID. Different client से नहीं आ रहा है, इसका मतलब different client से नहीं आ रहा है. Same ID जब भी होगा different client से नहीं आ रहा है. Am I clear? So this is actually session. तो यहाँ तक रहने देते हैं, इसके बाद फिर आगे सेशन एंड कुकीज, इसके आगे कुकीज है करके ये सबलेट खत्म हो जाएगा. ओनली कुकीज इज लेफ्ट. ओके, थैंक यू. थैंक यू सर.